پوری دنیا اور رشیا کی 80% پاپولیشن کو یہ لگتا تھا کہ یہ جنگ رشیا کے لیے مذاق ہی تو ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ رشیا جیسی بڑی پاور کے لیے یوکرین کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اب اس جنگ کا رخ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے، کیونکہ رشیا کی صرف یوکرین کے ساتھ جنگ نہیں، انڈائریکٹلی اس کی بڑی بڑی پاورز کے ساتھ جنگ ہے، جس میں یورپ اور امریکہ کی انڈائریکٹلی سپورٹ شامل ہے۔ اور کئی مہینوں سے جاری ویسے بھی یہ جنگ رشیا کے لیے ہار کے برابر ہی ہے، کیونکہ یوکرین کو فتح کرنے کا ٹارگٹ رشیا کا جسٹ 2 منتھ کا تھا۔ اس جنگ کو لے کر کے رشیا کے اپنے لوگوں کی حالت کچھ یوں ہے کہ سب سے زیادہ گوگل کے اوپر سرچ کیا گیا ورڈ رشیا میں تھا ہاؤ ٹو بریک دا آرم۔ اس کا مطلب ہے کہ بازو کو کیسے توڑا جائے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا کے اندر دبئی کے جانے والی فلائٹ سب سے سستی سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کی کاسٹ بھی اس ٹائم 3 لاکھ پلس روبل کے اوپر چلنے لگ رہی ہے، جو کہ پاکستانی 8 لاکھ پلس روپیز بنتے ہیں۔ اب یہ رشیا کی ایک ایوریج لیبر کاسٹ سے بہت ہی زیادہ ہائی لیول کے اوپر چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو چکی ہے، صرف اور صرف پیوٹن کے ایک فیصلے کی وجہ سے۔ حال ہی میں پیوٹن نے ڈکلیئر کر دیا ہے پارشل موبیلائزیشن پورے کنٹری کے اندر، یعنی اب ہر اس شخص کو اس جنگ کے اندر حصہ لینا ہوگا جو کہ کہیں نہ کہیں اس جنگ کو لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو لوگ اپنی صلاحیتیں یا تو کھو رہے ہیں مختلف قسم کے حادثات کی وجہ سے، اور ڈیفرنٹ قسم کی اسٹریٹجیز اپناتے ہوئے ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کرنا پڑے۔ فلائٹس کی ڈیمانڈز بڑھنے سے ایک عام رشین اس چیز کو افورڈ نہیں کر پا رہا، تو وہ بارڈرز کا رخ کر رہا ہے۔ اور اس ٹائم رشیا کے پاس جتنے بھی بارڈرز ہیں جو کہ اوپن ہیں، ان کے اندر کمپلیٹلی طور پر جیم لگ چکا ہے۔ صرف رشیا کی گاڑیاں ہی نظر آپ کو وہاں پر آتی ہیں، بہت ہی لمبی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں بارڈر سے نکلنے کے لیے۔ ایک جنگ کے کیا نتائج ہوتے ہیں، رشیا کی پاپولیشن کو اب یہ جا کر کے احساس ہو رہا ہے۔ جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھ کر یہ جسٹ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے تھے، تب تک تو ٹھیک تھا، ان کی زندگی کے اوپر بھی کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے اکانومک پابندیاں ضرور لگی تھی، لیکن ایک سنگل رشین کی زندگی کے اوپر کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ رشیا روزمرہ کی ہر قسم کی چیز کو خود پروڈیوس کرنے لگ رہا تھا، اور بیرونی ایکسپورٹ کے اوپر امپورٹس کے اوپر پابندی لگنے کی وجہ کے باوجود بھی وہ ہر قسم کی چیز کو افورڈ کر سکتا تھا، پروڈیوس کر سکتا تھا۔ لیکن اب جب ایک عام آدمی کی جان کے اوپر بھی بن آئی ہے، تو جب احساس ہو رہا ہے تمام قسم کے لوگوں کو، اور سب سے مخالفت یہاں پر رشین پریزیڈنٹ کی جا رہی ہے، پیوٹن کے خلاف بھر بھر کے ٹویٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیاز کے اوپر، ڈفرینٹ قسم کے لوگ اپنے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ریکارڈ کروانے لگ رہے ہیں۔ یہ جو معاملات تھے یہ رشیا کے اندر ہونے لگ رہے تھے۔ اب بارڈر کی کیا سچویشن ہے تو وہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارڈر کے اوپر رشیا کی اس ٹائم پکڑ بہت ہی مضبوط لیول کے اوپر ہے، اور یوکرین کے بہت سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر چکا ہے اس ٹائم رشیا، لیکن جنگ کو کنٹینیو رکھ پانا بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی آرم فورسز کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ آخر ان کی بھی صلاحیت ہوتی ہے جنگ کو لڑنے کی، آگے بڑھنے کی، تو وہ ان کی کہیں نہ کہیں مدھم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو نئے لوگ چاہیے آرمی کو آگے سے آگے نئے لیولز کے اوپر، یا جنگ کو آگے مزید بڑھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے رشیا کے پاس کچھ سولوشن یہی تھا کہ وہ لوکل لوگوں کو، نہایت ہی انٹرین قسم کے لوگوں کو آرمی کے اندر لے کر کے آیا جائے۔ اب یاد رکھیے گا، جب بھی ایک انٹرین شخص آرم فورسز کے اندر اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیتھ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک انٹرین شخص ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی منصوبہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر رشیا کے ساتھ جو بہت بڑے مسائل اور بھی درپیش ہیں، اس کے اندر سب سے مین چیز ہے یوکرین کے پیچھے دنیا بھر کی سپورٹ جس لیول کے اوپر موجود ہے، انڈائریکٹلی تو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرنے لگ رہے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ نیٹو، تمام قسم کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ انڈائریکٹلی اسلحے کے ذریعے سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات
बात है, यूक्रेनियन आर्मी के पास जज्बात भी मौजूद हैं। याद रखिए, जंग लड़ने के लिए जज्बात बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो वहाँ पर जज्बाती जंग है, तो यहाँ पर रशिया की साइड पर सिर्फ ज़बरदस्ती के तौर पर जंग लड़ी जा रही है। तो यहाँ पर जो पीछे से सपोर्ट मिलने लग रही है यूक्रेन को, वो बहुत बड़ी मायने रखती है। वो चाहे छोटी सी भी वॉर हेड्स क्यों ना हो, बहुत बड़े मायने रखते हैं रशिया के लिए, क्योंकि मिलिटेंट्स को किल करने के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा अमेरिका की जानिब से इस टाइम सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि यूरोप के साथ यूक्रेन के जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं, उन्हीं बॉर्डर्स के थ्रू वहाँ पर सपोर्टिव सामान जो है वो पहुँचाया जाता है और उसको फिर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। रशिया ने इस चीज़ का जो है वो रिएक्शन भी प्रोवाइड किया है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। और ऊपर से यहाँ पर हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि अगर नेटो के 1 इंच के ऊपर भी कुछ गलती से भी गिरता है तो आपको उस हर 1 इंच का भी जवाब देना पड़ेगा। तो ऊपर से धमकियां आ रही हैं, तो वहीं पर रशिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भी इस टाइम मौजूद है, यानी उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर पाबंदियां लगी हुई हैं। ऊपर से जंगी सामान और जंगी हथियारों को मामलात के अंदर भी वो थोड़ा सा अपने वही सामान यूज़ कर रहा है जो कि उसने रिजर्व तौर पर रखे हुए थे। और वहीं पर जो है रिजर्व आर्मी की कमी भी उसके पास मौजूद है। लेकिन यूक्रेन के पास भी जाहिर सी बात है ये आर्मी की कमी इस टाइम मौजूद है, लेकिन उनके पास एक जज्बात लेवल और मुहब्बत वतन होने की वजह से याद रखिए वो थोड़ा सा उनकी सलाहियत के अंदर इजाफा हो चुका है। और जिस लेवल पर वो लड़ सकते हैं इस टाइम रशियन आर्मी उस लेवल के ऊपर नहीं लड़ पा रही। हाल कुछ यूँ था रशियन आर्मी का कि उसका रुख मुकम्मल कीव की जानिब था, जो कि यूक्रेन की बहुत बड़ी सिटी है। लेकिन अब जब उसको अपनी सलाहियत का थोड़ा सा अंदाज़ा होने लग रहा है और पता है कि कितना मुश्किल है वो भी सबसे ख़ास विंटर्स के सीज़न के अंदर वहाँ पर चढ़ाई करना, तो उन्होंने अपना मुकम्मल रुख जो है वो लुहांस्क की जानिब तब्दील कर लिया है। कम्प्लीटली रुख तब्दील कर लिया है रशियन आर्मी ने, और कीव की जानिब उनकी जो चढ़ाई है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। और वहीं पर यूक्रेनियन अपनी फ़ौज जो है वो झंडे लहरा कर फतह का जो है वो ऐलान करने लग रही है। हालांकि रशियन आर्मी ने जस्ट अपना रुख तब्दील किया है, उस तरफ जाने से बेहतर उन्होंने इस तरफ जाने को तरजीह दी है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस टाइम भी जंग होने लग रही है। लेकिन पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की भी धमकी आल्सो यूक्रेन को दे रखी है, जो कि बहुत बड़े मायने रखती है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रशिया को भी पता है कि उसके अपने लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उसकी रेडिएशंस याद रखिए आज से 50 साल पहले इतना ख़तरनाक तरीन मवाद उसमें यूज़ किया जाता था, तो आजकल के एडवांस लेवल के ऊपर जो न्यूक्लियर है उसको रोकने का कोई भी ऐसा सिस्टम हमारे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। उससे निकलने वाली रेडिएशंस को रशिया को अंदाज़ा है कि वो तकरीबन 100 साल तक असरअंदाज रहेगी रशिया की अपनी आबादी के ऊपर। तो रशिया इतने बड़े लेवल का रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन जब उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आखिर में उसने जाकर के एक ही काम करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। इस टाइम रशिया छोटे मोटे मिसाइल्स का इस्तेमाल करने लग रहा है, लेकिन ये कब तक करेगा? रिजर्व में पड़े हुए एक छोटे से मिसाइल से क्या कुछ किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर आल्सो रशिया कर चुका है। यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह करके यूक्रेन के लोगों के अंदर एक खौफ फैलाने के लिए अब उसके पास जो रिजर्व मटेरियल है वो बहुत ही कम रह गया है। और बहुत कम रहने की वजह से याद रखिए उसमें एक ही अब ऑप्शन बाकी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके इस्तेमाल करने के लिए रशिया को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर मजीद पाबंदियों का सामना होगा और पूरी दुनिया एक बार कंप्लीटली अपना रुख तब्दील कर लेगी रशिया की मुखालिफ। तो हम डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते कि रशिया ये जंग हार चुका है, लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि रशिया के लिए इतनी बड़ी इतने लंबे अरसे तक जंग का जारी रखना ही उसके लिए हार के बराबर ही समझा जा रहा है। अब बहुत सारे टीवी चैनल ब्लूमबर्ग और उनके मुताबिक यहाँ पर रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा आर्मी अपनी गंवा चुका है बनिस्बत यूक्रेन के, यानी जिनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है या जो जंग के अंदर मौजूद हैं उनकी अपनी आर्मी बहुत ही कम लेवल के ऊपर डैमेज हुई है।
हालांकि रशिया के ट्रूप्स हैं, आर्मी हैं, जितने भी उनके वेपन्स हैं वो बहुत हाई लेवल के ऊपर उनके अंदर डैमेज जो है वो देखने को मिला है। और वहीं पर वेपन्स को शिफ्ट करने का जो मामलात रशिया के साथ हैं वो बहुत ही स्लो लेवल के ऊपर इस टाइम चलने लग रहे हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर हेड, न्यूक्लियर वार्स वेपन्स जो हैं रशिया के पास मौजूद तो हैं, लेकिन उनको वक्तन फवक्तन आगे शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल साबित हो पा रहा है इस टाइम रशिया के लिए। तो रशिया को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मजीद काम करना पड़ेगा और बैकएंड के ऊपर बहुत ही हाई लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम किया भी जा रहा है। देखना अब बाकी ये है कि आने वाले 1 से 2 मंथ में किस लेवल के ऊपर नेटो की सपोर्ट यूक्रेन के साथ मौजूद रहती है और यूक्रेन कैसे उसके खिलाफ रशिया के इस्तेमाल करता है और बड़े हाई लेवल के ऊपर वो नया से नया ट्विस्ट क्रिएट करता रहता है। तो यहाँ पर जंग जो है वो मजीद तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा इस टाइम इंक्रीज कर सकता है उसके अंदर टाइमली। बेसिकली वजह है सिर्फ और सिर्फ जो पावर्स हैं उनकी सपोर्ट बड़े हाई लेवल के ऊपर यूक्रेन के पीछे मौजूद है, इन टर्म ऑफ इकॉनमी, इन टर्म ऑफ वेपन्स एंड इन टर्म ऑफ डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स जो कि रशिया को यूक्रेन को मिलने लग रही हैं यूरोप की जानिब से और स्पेसिफिकली अमेरिका की जानिब से बड़े ही हाई लेवल के ऊपर। और वहीं पर इस टाइम तुर्की जो कि इस चीज़ के खिलाफ था, तो टर्की ने भी इस टाइम ऐलान किया हुआ है यूक्रेन की हमायत के लिए, क्योंकि टर्की भी नेटो का बड़ा हाई लेवल का मेंबर है। तो इस मेंबर होने की वजह से उसने भी अब उसके रशिया के खिलाफ जो है होने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है। तो इस चीज़ का क्या असर पड़ता है रशिया के ऊपर, ये आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर हमें पता चलेगा। शुक्रिया।